Good morning, students. Today we are going to read chapter 7, class 10th, The Necklace of Footprints Without Feet book, written by Albert Guy de Maupassant. This chapter is also written in 1984 in Paris. The setting is also in Paris and this chapter is also published in Paris. Now, the introduction to the lesson. The story revolves around a selfish lady named Matilda. जो ये चैप्टर है, एक लेडी जो मटिल्डा है, शी इज़ ऑल्सो वेरी प्रीटी. शी इज़ अनसेटिस्फाइड विद हर लाइफ एज शी वांट्स अ रिच हस्बैंड. वो अपनी जो लाइफ है उसे अनसेटिस्फाइड है बिकॉज शी वांट्स अ रिच हस्बैंड बिकॉज शी बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स. वो एक क्लर्क की फैमिली से बिलोंग करती हैं एंड हर फैमिली इज़ अनेबल टू गिव डॉरी. शी इज़ मैरिड टू अ क्लर्क. क्योंकि उसके फैमिली अनेबल है उसको ज़्यादा डोरी देने में, इसलिए शी इज़ मैरिड टू अ क्लर्क. वन डे बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ आर इन्वाइटेड टू अ पार्टी एट द मिनिस्टर्स हाउस. बट Matilda doesn't have good clothes and jewels to wear at such a party. अब वो दोनों इनवाइट किए जाते हैं एक मिनिस्टर के द्वारा, बट Matilda doesn't have good clothes and jewels. Her husband suggests her to buy a dress and ask an old friend for jewelry. अब उसके जो हस्बैंड हैं उसको सजेस्ट करते हैं कि वो ड्रेस खरीद ले और ज्वेलरी के लिए अपनी एक पुरानी फ्रेंड है उससे पूछें. She then borrows a necklace from her friend and goes to the party. अब वो एक नेकलेस बोरो करती है अपनी फ्रेंड से और पार्टी में जाते हैं. What happens next proves to be a lesson for the unhappy lady. अब जो घटता है वो उस लेडी के लिए एक सीख है. About the author, Henri René Albert Guy de Maupassant was born on 5 August 1850 to 6 July 1893. Was a French writer remembered as a master of the short story form and as a representative of the naturalist school of writers who depicted human lives and destinies and social forces in disillusioned and often pessimistic terms. He wrote some 300 short stories, 6 novels, 3 travel books and 1 volume of verse. The main characters in this chapter are Matilda, Loisel, Monsieur Loisel and Madame Forrester. These are 3 main characters in this story. Now the summary of the chapter. The story is about a woman who doesn't know how to live within her means. Loisel belongs to a middle class family but wants to live a lavish lifestyle. आपको I have told you about the lady Matilda. She is also very pretty. She is not very rich lady but wants to live a lavish lifestyle. बहुत उसकी जो एस्पिरेशंस हैं बहुत हाई हैं. Her husband is a clerk who cannot afford to fulfill all her demands. उसके हस्बैंड अफोर्ड नहीं कर सकते उसकी डिमांड्स को. For attending a party, Loisel decided to borrow a necklace from her friend who rich. Loisel डिसाइड करती हैं एक पार्टी को अटेंड करने के लिए नेकलेस बोरो करने के लिए फ्रॉम हर फ्रेंड हु रिच, जो बहुत अमीर थी. Loisel loses the necklace by returning from the party. वो नेकलेस को लॉस कर देते हैं. Loisel and her husband spent all their fortunes and borrowing to buy a similar necklace which cost them a fortune. After that, they have to everything which could be done so that they could repay the loan. अब वो अपना जो सारा भाग्य है उनका, जो उन्होंने नेकलेस बोरो किया था सेम नेकलेस खरीदने के लिए सेम कॉस्ट के लिए डेब्ट लेते हैं, ऋण लेते हैं. It takes about 10 years of hard work
and lots of sacrifices before she is able to repay all her loans. अब उनको 10 साल बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं वो, और बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करते हैं बिफोर शी इज़ एबल टू रिपे ऑल हर लोन्स, इससे पहले कि वो अपने लोन को पे करते। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं। द टाइम एंड ऑल द हार्ड वर्क टेक देयर टॉल ऑन हर एंड शी एजेस क्विकली, वो बहुत जल्दी एज्ड हो जाते हैं। आफ्टर दैट टॉर्चर्स पीरियड हैड पास्ड शी हैपन्स टू मीट हर रिच फ्रेंड एंड टेल्स द होल स्टोरी। अब जो उनका बुरा समय था वो बीत जाता है और एक दिन वो अपने फ्रेंड से मिलती हैं और पूरी कहानी उसको सुनाती हैं। हर फ्रेंड टेल्स दैट इट वॉज नॉट अ डायमंड नेकलेस बट अ चीप इमिटेशन ज्वेलरी। अब वो बताती हैं कि ये तो एक सस्ती सी नकल थी, वो असली डायमंड ज्वेलरी नहीं था। और इस प्रकार उस स्टोरी ने, जो नेकलेस था, उसने इनकी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया। नाउ आई वॉन्ट टू आस्क द क्वेश्चन रिलेटेड टू द चैप्टर। फर्स्ट, द कॉज ऑफ लाइजल्स लाइफ चेंज्ड ड्यू टू नेकलेस। कमेंट, किस प्रकार नेकलेस के कारण उनकी लाइफ चेंज हुई। बिकॉज ऑफ नेकलेस लॉइजल फेल इन अ डेब्ट trap which forced her to live like an ordinary lower middle class housewife। क्योंकि जो मिटिल्डा थी वो नहीं चाहती थी एक मिडिल क्लास लाइफ को स्पेंड करना, लेकिन जो नेकलेस था उसके कारण उनको डेब्ट लेना पड़ा था, जो ऋण लेना पड़ा था। इस प्रकार वो अपनी एक जो लोअर ऑर्डिनरी लाइफ थी, हाउसवाइफ थी, वो उसने बिताना शुरू कर दिया। सी स्टार्टेड डूइंग ऑल द हाउस होल्ड चॉर्स विच अ लेडी ऑफ हर स्टेटस नॉर्मली डज, जो हर लेडी करती है, इस प्रकार उसने घर का काम था करना शुरू किया। दिस वॉज गुड फॉर हर एज इट टॉट हर टू कट हर कोट अकॉर्डिंग टू हर क्लॉथ। उसने सिखाया कि जितनी हमारी चादर है उतना ही हमें पैर पसारना चाहिए। पीपल शुड ऑलवेज ट्राई टू लिव विद इन देयर मीन्स। एस्पिरेशंस हैव नो लिमिट्स बट वन शुड नेवर फॉरगेट द ग्राउंड रियलिटीज़, कि जो एस्पिरेशंस हैं, इच्छाएं हैं, उनकी कभी कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन हर किसी को अपनी जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट वाज द कॉज ऑफ मिटिल्डाज ruin? क्या था उनका ruin? हाउ कुड शी हैव अवॉइडेड इट? मिटिल्डा वांटेड टू लिव लाइफ लाइक अ क्वीन। हर फैमिली बैकग्राउंड डिडंट परमिट दिस, कि वो जो लाइफ थी वो स्पेंड करना चाहती थी एज क्वीन, लेकिन जो उसकी फैमिली थी वो उसको परमिट नहीं करती थी। शी वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट हर लाइफ्स रियलिटी, और वो रेडी भी नहीं थी कि वो एक्सेप्ट करे अपनी लाइफ रियलिटीज़। शी वॉज हेल बेंट ऑन शोइंग ऑफ। शी कुड हैव अवॉइडेड इट बाय लर्निंग टू एक्सेप्ट हर करंट सिचुएशन। अब उसने सीखा इसको अवॉइड करना, बाय लर्निंग सीखा टू एक्सेप्ट हर करंट सिचुएशन, जो उसकी करंट सिचुएशन थी। अनदर वे कुड हैव बीन टू ट्राई गेटिंग अ जॉब और स्टार्टिंग अ बिजनेस, और दूसरा तरीका था कि उसने जॉब करना स्टार्ट कर दिया, एक बिजनेस। वन शुड आइदर ट्राई टू वर्क हार्ड टू रियलाइज वन ड्रीम और स्टॉप ड्रीमिंग अलटुगेदर। या तो किसी को ड्रीम नहीं देखना चाहिए या फिर उस ड्रीम को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट would have happened to Matilda if she had confessed to her friend that she had lost her necklace? कि क्या होता अगर वो कन्फेस कर लेती कि उसके द्वारा नेकलेस लॉस हुआ है। As the end of the story suggests, it being a necklace made of fake diamonds, so it was possible that Matilda and her husband didn't have borrow beyond their means। अगर उनको पता चल जाता तो वो इतना डेब्ट नहीं लेते, अपनी पहुंच से बाहर। अनदर एंगल वर्थ अटेंशन इज़ द गुड नेचर ऑफ हर फ्रेंड, और दूसरा उसकी जो फ्रेंड है उसकी गुड नेचर को भी शो करता है। द ease by which she showed all her jewelry to Matilda suggests that even if it was of originally diamond, she would not have been angry at getting it lost। और दिखाता है उसने उसको सारी ज्वेलरी अपनी दिखाई थी, ये शो करता है कि अगर वो उसकी ज्वेलरी भी जो उसकी डायमंड ओरिजिनल ज्वेलरी थी वो भी
गुम कर देती तो शी वुड नॉट हैव बीन एंग्री एट गेटिंग इट लॉस्ट. If you were caught in a situation like this, how would you have dealt with it? अगर आप इस सिचुएशन में फंस जाते, सेम सिचुएशन में, तो आप क्या करते? I would have probably behaved in the same way as Loisel and her husband did. कि सेम ऐसा ही करते जैसे उसने उन दोनों ने किया. Scarcity of money doesn't give confidence to most of the people to tell the truth. कि जो मनी है, स्कैर्सिटी मनी की कमी डजेंट गिव कॉन्फिडेंस, कभी कॉन्फिडेंस नहीं देता टू मोस्ट ऑफ द पीपल टू टेल द ट्रूथ. ट्रूथ को बताने के लिए मोस्ट ऑफ द पीपल वुड बी कॉट इन सिमिलर डेब्ट ट्रैप द कपल इन दिस स्टोरी. हमेशा लोग इसी प्रकार से जो ऋण है, डेब्ट है, उसमें ट्रैप हो जाते हैं एज द कपल इन दिस स्टोरी. आई होप you understood the chapter and the question answers. Thank you and have a nice day.